Hello everyone. We are in very important topic of the mathematics, that is called trigonometry. Trigonometry, what do you know? And already it is started in I think ninth or 10th, right? So you know trigonometry. But there are 6 members in this topic, and trigonometry is topic or branch of mathematics which is very important, right? So आप लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हो वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, इफ यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल तो आप उसकी स्टडी करते थे, बाकी नहीं। आपको याद होगा क्योंकि वहां पर सब लिमिटेशंस थी। बट राइट नाउ अभी आप 11th में किसी भी ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री स्टडी कर सकोगे। बट एक ट्रेजेडी कहो तो ट्रेजेडी या कॉमेडी कहो तो कॉमेडी ये है कि ट्रिगोनोमेट्री, पूरी ट्रिगोनोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ेंगे यूनिट सर्कल में, मींस सर्कल में। ये इसकी एक ट्रेजेडी है, बराबर याद रखना। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। शुरू से मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इफ यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल देन व्हाट। सो देयर आर 6 मेंबर्स इन दिस फैमिली, द नेम इज ट्रिगोनोमेट्री, right? So let us start. First is according to theta, with respect to theta it is called hypotenuse, opposite side and adjacent side। अगर मैंने इसे थीटा बोला होता तो ये ऑपोजिट ये एडजेसेंट हो जाती। हाइपोटेनियस इज फिक्स, राइट? सो फर्स्ट मेंबर इज sin theta। sin means opposite side upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse, which is called sin theta। Then the second member is cos theta। cos means adjacent upon hypotenuse, adjacent side upon hypotenuse। Third one is tan। there are 6 members। tan means opposite upon adjacent, so opposite side upon adjacent side। opposite side upon adjacent side। the fourth member is cosec theta। cosec is reciprocal of sin, so the definition will be hypotenuse upon opposite side। then second theta or sec theta। sec is reciprocal of cos, then it will be hypotenuse upon adjacent side। and last one is cot theta, that is reciprocal of tan theta, it will be adjacent side upon opposite side। ये सब आपको पता है, एवरीथिंग यू नो। बट मैंने शुरू से शुरू किया, बिगिनिंग से, बॉटम से स्टार्ट किया। अब थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। नाउ देयर आर सम इंटर रिलेशंस। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्री, आप इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे, अब हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे थोड़े टाइम के बाद। वी विल से दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उनके बीच में भी कुछ इंटरनल रिलेशन है। सो क्या रिलेशन है? लेट वी सी। फर्स्ट वी नो दैट cosec थीटा is 1 upon sin theta, because sin and cosec are reciprocal of each other, therefore also we can say sin is 1 upon cosec। sin is 1 upon cosec। also you can write in this way, cosec theta into sin theta is 1। if they are reciprocal of each other, their product will be 1, obvious। second relation is sec theta is 1 upon cos theta।
if sec is 1 upon cos, that means cos will be 1 upon sec, cos will be 1 upon sec, and their product will be, and therefore sec theta into cos theta will be 1. Third one, cot theta is 1 upon tan theta. It means tan is 1 upon cot. Also we can say cot theta into tan theta is 1. Some more interrelations we have, like tan means sin upon cos. Tan theta is sin theta and cot theta is cos theta अपन, ये भी आपको पता होगा. ये सारे इंटर रिलेशंस आपको याद रखने हैं और याद होंगे ही, राइट. पॉजिटिव में लेता हूं. नाउ वी हैव 3 आइडेंटिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है, बट दे हैव 9 फॉर्म्स. तो ये आपको सारे 9 फॉर्म्स याद रखने हैं, लर्न बाय हार्ट करने हैं, याद रखना, राइट. लेट मी सी. First identity is sin square theta plus cos square theta is 1. By this identity we can make mod 2 results, mod 2 forms. Second one, जैसे मैंने cos square को राइट हैंड साइड में लिया और ये फॉर्म बनाया कि 1 माइनस cos square theta is sin square theta. Identity is same, but the form is different. Same way, अगर मैं sin square को सामने ले गया, then it will be 1 minus sin square theta equal to cos square theta. So there are 3 forms for particular this identity, right? Similarly, we have 2 more identities. Second one is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. अब यहां पे भी हमें 2 और फॉर्म्स मिलेंगे. कैसे? चलो 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ और फिर पूरा फॉर्म उल्टा के लिखो. देन इट विल बी sec square theta minus 1 is tan square theta. अगर tan square को सामने ले जाओगे then it will be sec square theta minus tan square theta is 1. These are new 3 forms of particular this identity. And in the last we have 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Now other forms, जैसे मैं 1 ले गया राइट हैंड साइड में, so it will be cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. अगर cot square को राइट हैंड साइड में ले गया then it will be cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So these are total 9 forms for 3 identities. All form you have to write 5 times in continuous 3 lectures. आपको ये रिमाइंड करना है, रिमेम्बर करना है, याद करना है. So आपको ये सारे 9 forms till 3 lectures 5 times लिख के क्लासरूम में सबमिट करना है, राइट. उसके बाद में we have 2 measurements. To measure the angle we have 2 methods. First is degree form and another is radian form.
रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर, याद रखना बराबर। रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। ये दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन है कि भाई एंगल को आप दो में से कोई भी मेथड से यू कैन मेजर इट, डिग्री फॉर्म में भी एंड रेडियन फॉर्म में भी। सो बाय विच रिलेशन वी कैन कंपेयर देम, किस तरह से हम उनको कंपेयर करेंगे? सो वी नो दैट पाई रेडियन means 180 degree. This is the relation between them. Pi radian equal to 180 degree. If we divide both sides by 2, it will be pi by 2 radian is 90 degree. Pi by 2 radian is 90 degree. If we divide by 3, this 2, then will be pi by 3 radian is 60 degrees. 63 is 180. If we divide by 4, it gives pi by 4 is 45 degree. Pi by 4 is 45 degree. And if we divide it by 6, it will be pi by 6 equal to 30 degree. So these are the relation between degree form and radian form, जिसकी मुझे पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में एक टॉपिक हमारे पास है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। वो टॉपिक भी आप पढ़ के आए हो 10th में कि इन अ सर्कल सपोज इट इज एन आर्क, its length is L and it is an angle formed by this arc with the center. It is an angle formed by arc with the center and this is radius of this circle. So we have the formula length of minor arc equal to length of minor arc L is equal to pi r theta upon 180. This is the formula of the 10th. This is the formula of the 10th. If we measure everything in radian form, so 180 degree will be pi radian. If we measure everything in radian form, 180 degree will be pi radian. Pi चल बसे. So r theta, where theta is in रेडियन फॉर्म, गेटिंग और नॉट? तो ये सारे मेजरमेंट्स भी आपको याद रखने हैं। क्लियर पॉइंट? these are particular for the right angle triangle. These are the interrelations. 3 identities containing 9 forms. Relation between radian and degree measure. Length of minor arc, which we will use in second or third lecture. So ये भी आपको याद रखना है। और एक और चीज मैं आपको दे रहा हूं कि यहां से by using these forms we can make giant sums of the trigonometry. कैसे? For that I am giving you some important results of ratio and proportion. आप पढ़ के आए हो, फिर भी आज मैं रिवाइज करवाऊंगा। ये सारी चीजें मैं आज ऐसी आपको दे रहा हूं कि एक दिन में काम में नहीं आएगी, पर जब वो काम में आएगी आप हिल जाओगे पक्का। कटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस। बाद में वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट।
let you start. If there is A upon B equal to C upon D, means we are comparing two ratios. That's why these results will be called results of ratio and proportion. Right? Here A upon B equal to C upon D. These are simplest form. Suppose simplest form. तो इसके बाद में we have some properties, some rules. Let me start. First is alternando. First is when we use alternando, it will be मतलब इन दोनों के प्लेसेस आपको चेंज करने हैं. सो इट विल बी A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन D. सो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की, दिस प्रॉपर्टी नोन एज अल्टरनेंडो. अगर इन दोनों के प्लेस आप इंटरचेंज करते हो तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो. सेकेंड वन इज invertendo. Second one is invertendo. Second one is invertendo. सब कुछ मैं यहीं पे अप्लाई करूंगा. Means we are taking the reciprocal form. We are taking the reciprocal form, and therefore it will be B upon A equal to D upon C. B upon A equal to D upon C. Getting or not? Third one is componendo. Third one is componendo. When we use componendo in this result, it will be A plus B upon B equal to C plus D upon D. मतलब आपको डीनो को न्यूमरेटर में ऐड करना है और कुछ नहीं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो. देन फोर्थ वन इज डिविडेंडो. डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कॉम्पोनेंडो में मैंने ऐड किया, वैसे ही डिविडेंडो में we will subtract. Same process or relation will be subtraction. A minus B upon B equal to C minus D upon D. A minus B upon B equal to C minus D upon D. So this process is called dividendo. अब दोनों साथ में भी आ सकते हैं ना. So it's called componendo and dividendo. It's called componendo and dividendo. And when we use componendo and dividendo, in this result, it will be A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. So this operation, this process is called componendo and dividendo. अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूं कि डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो, तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होगा और डीनो में एडिशन होगा. अगर मैंने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए तो. एंड द लास्ट रिजल्ट इज each ratio result, that is sixth one. If we have A upon B equal to C upon D, therefore each ratio is equal to, add numerator into numerator and deno to deno. मतलब A plus C upon B plus D. आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. A minus C अपॉन B माइनस D. और ईच रेशियो का मतलब होता है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस. इसका मतलब ये होगा ऑल फोर टर्म्स आर सेम. तो सर आपने तो हमें बोल दिया, बट हाउ कैन वी सी, और हम मान भी कैसे लें, हाउ कैन वी बिलीव इट? तो वी कैन वेरीफाई. सी यहां पे मेरे पास
1/2 इज इक्वल टू 3/6, ऐसे रेशियो से। अभी आप कोई भी चलो अल्टरनेटो लगाओ, इंटरचेंज दिस, सो 1/3 इक्वल टू 2/6, बोथ आर सेम। इन्वर्टेंडो, आप इनवर्स ले लो तो ये तो समझ में आएगा। अब कॉम्पोनेंडो ले लो, चलो कॉम्पोनेंडो ले लो, 1 + 2/2 is 3 + 6/6, चेक कर लो, it is 3/2, it is 9/6, the simplest form of 9/6 is 3/2, you can check। डिविडेंडो ले लो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लो, इवन दो यू कैन टेक दिस, सी अगर मैंने ये रिजल्ट लगाया तो चलो 1/2 इक्वल टू 3/6, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे ऐड करो, 1 + 3 upon 2 + 6, check it, it is 1/2, it is 1/2, its simplest form will be 1/2, चेक कर लो आप। और अगर सब्ट्रैक्ट भी करना चाहो ना, रिजल्ट रिमेन्स सेम, चेक कर लो, 1 - 3 is -2, 2 - 6 -4, -2/-4 that will be 1/2। सब जगह पे आपको एक ही आंसर मिलेगा। सो दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट्स वी कैन मेक वेरी डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, लेट मी सी। चलो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सी बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, if we have 1 minus sin square theta equal to cos square theta, यहां से मैंने स्टार्ट किया, we have 1 minus sin square theta is equal to cos square theta। now factorize it, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 minus sin into 1 plus sin equal to cos theta into cos theta। अब 1 प्लस साइन को मैं राइट हैंड साइड में और एक cos को डिनो में ला रहा हूं, सो द फॉर्म विल बी 1 minus sin theta upon cos theta इक्वल टू एक cos यहां पे बचा हुआ है और ये 1 प्लस साइन आ गया डिनोमिनेटर में। सो ये हमारा आपका 9th वाला सम हो गया कि 9th या 10th में आप ऐसे सम्स प्रूव करते थे, अगर याद हो तो, कि भी प्रूव 1 minus sin upon cos is cos upon 1 plus sin, तो ये प्रूफ हो गई, ये इसका ओरिजिन हुआ। बट आप कौन सी मेथड से करते थे कि भाई ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर बनेगा, एक cos कट होगा, सीधा आंसर है 3rd या 4th स्टेप में। तो वो भी राइट मेथड थी, वो भी गलत नहीं है, बट ये बेसिक हो गया कि अगर ये ऐसे सम्स तो आप यू बना सकते हो। एक डिफिकल्ट सम में ऐसे बना के देता हूं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज ईच रेशियो प्रॉपर्टी। ईच रेशियो का मतलब ये है कि ऊपर ऊपर एडिशन, नीचे नीचे एडिशन कर सकते हो, ऊपर ऊपर सब्ट्रैक्शन, नीचे नीचे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो देखो मैं ऊपर ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, इक्वल टू मैंने ऊपर एडिशन किया 1 माइनस साइन प्लस कॉस, 1 माइनस साइन प्लस कॉस अपन नीचे भी एडिशन cos प्लस 1 प्लस साइन, तो मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस साइन प्लस कॉस। ये आपका 10th का बढ़िया सम हो गया, बहुत ही हेडेक और बोरिंग सम हो गया। कैसे प्रूव दिस 1 माइनस साइन प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस इज कॉस अपॉन 1 प्लस। अरे भाई ये 4 स्टेप में आंसर आ गया, दिस इज द प्रूफ, यही तो प्रूफ हो गई। यहां से शुरू करके इतना लिखो, किसी की ताकत नहीं है कि आपका आधा मार्क्स भी कट करे। आधा मार्क एनीवन कैन नॉट कट योर हाफ मार्क, रिमेंबर इट। सो इट इज प्रॉपर वे। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज है, ये रिजल्ट्स है, ये सब है, सो योर बेस, योर फाउंडेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, रिमेंबर इट। क्योंकि ये सारी चीजें जब यूज होती है ना तब फंसते हैं, क्योंकि हमारी एक ही हैबिट है, सीधे सीधे सिंप्लीफाई करते जाओ, सीधे सीधे आंसर आ जाए, बात खत्म। हमें कोई नई हेडेक लेनी नहीं है, हमें किसी झंझट में गिरना नहीं है। सो बेटा ये सब आज जो मैंने सारी चीजें आज आपको करवाई, ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं, होप कि आपको होंगे ही। स्टिल आई एम गिविंग यू
बिकॉज योर सिक्योरिटी, राइट। तो आज ये जो ट्रिगो का मैंने पार्ट दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो 2 टाइम्स आप इसे लर्न कर लेक्चर देखना और ये फॉर्मूला भी लिखना। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जंप इनटू ट्रिगोनोमेट्री, राइट। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।